خاکدان سے آتے ہیں، گل تو اس خاکدان سے آتے ہیں، رنگ ان میں کہاں سے آتے ہیں؟ پھول بھی بیچتا ہے تحفے میں، تیر جس کی کما سے آتے ہیں۔ تم بھی شاید وہیں سے آئے ہو، اچھے موسم جہاں سے آتے ہیں۔ یہ پری چہرہ لوگ نمان صاحب، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، کون سے آسمان سے آتے ہیں؟ اور 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ کے دل کی ترجمانی کرنے کے لیے میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا۔ چلو اب گھر چلے محسن، بہت آوارگی کر لی۔ چلو اب گھر چلے محسن، بہت آوارگی کر لی۔ سب مکتب کے ساتھی تھے، انہیں آخر بچھڑنا تھا۔ طلباء سے مخاطب ہونے کے لیے میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں وائس پرنسپل آف ایمان پبلک سکول اینڈ کالج یاسر خلیل گمن صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے جذبات کو اور اپنے احساسات کو ان لوگوں تک پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آنریبل ڈائریکٹر ایمان کالج میاں ندیم شہزاد صاحب، respected teachers and dear students، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز گفتگو کروں گا ان الفاظ کے ساتھ۔ ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے جو آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ لوگ مشعلیں لے کر مجھے ڈھونڈنے نکلیں، لوگ مشعلیں لے کر مجھے ڈھونڈنے نکلیں، میں رستہ بھٹک جاؤں، جنگلوں میں شام ہو جائے۔ اپنے تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے محسن کہ ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے، ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے۔ فرسٹ آف آل بیٹا، ابتدائی بات، آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو قوت فیصلہ، جس کو ڈیسیزن پاور کہا جاتا ہے، وہ عطا کی ہوئی ہے۔ یہ ڈیسیزن پاور آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کیا انتخاب کرنا ہے، صحیح راستے کا یا غلط راستے کا۔ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ آپ کے لیے کیا چیز درست ہے، کیا غلط ہے، آپ کا انتخاب صحیح ہے، غلط ہے۔ اس کا فیصلہ کرنے کی ڈیسیزن پاور آپ لوگوں کے پاس ہے، اور آپ سے کل روز قیامت حساب اللہ پاک نے آپ کی اسی دی ہوئی ڈیسیزن پاور کی وجہ سے لینا ہے۔ میں سادہ سی بات ایک ایگزامپل کے ساتھ اس کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم جب نارمل روٹین سے ہٹ کے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یار بندے کی جو ہے نا، اس کے پاس عقل نہیں ہے کہ یہ روٹین سے ہٹ کے کام کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل سردیوں کے دن ہوں اور ہم پنکھا چلا کے بیٹھ جائیں، گرمیوں کے دن ہو، سخت گرمی ہو، دھوپ میں جا کے بیٹھ جائیں، یہ چیزیں جو ہے نا یہ نارمل روٹین سے ہٹ کے ہیں۔ جبکہ صحیح جو نیچر ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہم یہاں پر فیصلہ کریں کہ ہمارے لیے فائدہ مند کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے۔ یہ عقل ہوتی ہے جس نے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو آج میرا موضوع بحث ہے، اور وہ ہے ڈیسیزن پاور، قوت فیصلہ۔ اب عقل میں اور قوت فیصلہ یہ آپ نے خود پہچاننا ہے۔ آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اسی لیے اللہ پاک نے۔ دیکھیں
नॉर्मली रूटीन है। सर्दियों के दिनों में हम धूप में बैठते हैं, गर्मियों में हम छांव में बैठते हैं। जानवर भी यही तरीकाकार इख्तियार नहीं करते। गर्मियों में वो भी छांव में जाके बैठेंगे, सर्दियों में वो भी धूप की तलाश में होंगे। तो जानवरों में और हमारे दरमियान तो फर्क नहीं हुआ। अगर अकल है तो अकल उनके पास भी है। अल्लाह पाक ने अकल तो उनको भी फिर दी हुई है। अगर यही अकल है, भूख लगती है खाना खाते हैं, उनको लगती है वो चारा खाते हैं। प्यास लगती है पानी पीते हैं, उनको प्यास लगती है वो भी पानी पीते हैं। अकल तो यही कहती है, अकल तो यही कहती है। अब रह गई बात कि वो पानी पीने के काबिल है या नहीं है, ये फैसला नहीं कर पाते जो जानवर है। जबकि इंसान जो होते हैं वो ये फैसला कर लेते हैं। छप्पड़ तो भर के अगर तुहानू कोई गिलास दे दे तुसीं नहीं पियोगे, जानवर पी लेंदे हैं। वाशरूम की टूटी तो भर के पानी दे दो, हालांकि साफ है, नहीं पियोगे। डिसीजन पावर आपको रोकती है ये काम करने से। ये डिसीजन पावर ही है जिसकी वजह से कल को अल्लाह पाक ने आप लोगों का हिसाब लेना है। तो इसका मतलब है कि आपके पास कुव्वत फैसला है। तालीमी कैरियर की बात करते हैं अभी, आप सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं तालीम के साथ इस चीज़ को रिलेट करता हूँ कि बेटे आपकी जो तालीमी कैरियर है, हमारे उस्ताद कराम ने हमें बताया था, वही बात आप लोगों तक पहुंचाता हूं। 4 साल ज़िंदगी के बड़े अहम होते हैं। 2 साल मैट्रिक के होते हैं जो आप लोग गुजार चुके हैं, बिल्कुल उसकी दहलीज पर हैं। आपके 4 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं, एक सिमिलरिटी भी बन गई, ठीक है ना। 4 साल ज़िंदगी के अहम है, आपके 4 तारीख को पेपर शुरू हो रहे हैं, आई थिंक, तो ये एक सिमिलरिटी भी है। तो यहाँ पर आप बात यह है कि 2 साल आपने गुजार लिए, अगले 2 साल आपके रह गए इंटर के। तालीमी कैरियर में जिस तरह जिस्म के अंदर जो है ना, रीढ़ की हड्डी को एक बड़ी अहमियत हासिल है। एक भी मोहरा अगर हिल जाए ना तो आप खड़े रहने के काबिल नहीं होते, खड़े नहीं हो सकते, आप अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। ये वजूद आपसे जो होगा ना वो संभाला नहीं जाएगा। तो इसी तरह तालीमी कैरियर के अंदर आपके पास वही रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, वो आपके बेटे FSC होती है। और किस्मत हमेशा उनका साथ देती है। अमूमी तौर पर कहा जाता है कि यार मेरी किस्मत में नहीं था। देखें, किस्मत के पाबंद हैवानात और जमादात होते हैं, इंसान फ़क्त अहकामात इलाहिया का पाबंद होता है, जो अल्लाह पाक के अहकामात होते हैं। आप इंसान हैं, आप कहाँ किस्मत के पाबंद हो गए। और किस्मत हमेशा उन लोगों का साथ देती है, याद रखें, जिनका किस्मत ने साथ दिया है। किस्मत हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो डिसीज़न लेते हैं ऑन द टाइम, ऑन द स्पॉट, जिनके पास ये ताकत होती है फैसला करने की। ऑन द टाइम, ऑन द स्पॉट डिसीजन ले, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ को फाइनलाइज करें, उनका साथ देती है। अगर एक मरतबा ये मौका निकल जाए ना तो उसके बाद दोबारा उस वक्त आता है जब इंसान जो होता है ना वो अच्छा खासा मेहनत करके थक जाता है, तब जाकर दोबारा वो मौका आता है और उसके लिए कई साल गुजर जाते हैं। आपके पास एक टाइम आ रहा है, कहने का मकसद ये था, अब फर्दर आपके पास एक टाइम आ रहा है, एक मौका आ रहा है। आप जब मैट्रिक के एग्ज़ाम से फारिग होंगे तो फिर आप लोगों के पास एक मौका होगा, एक टाइम होगा, एक फ़ैसला करने का वक्त होगा। और वो फ़ैसला करना है आप लोगों ने कि आपने अपनी तालीम के लिए किस अदारे का इंतखाब करना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप लोगों के लिए एक सोचने वाला पॉइंट है। अब आते हैं, मैं आप लोगों को एक और जो है बात की जानब लेकर आता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप फ़ख्र होना चाहिए जिस अदारे का आप हिस्सा हैं। ये सारे लोग जो सामने बैठे हुए हैं, मैं नाम लूँ तो हर बंदा जो होगा ना आपको उसका एक एक्सपीरियंस नज़र आएगा। एक टाइम उसने एक अच्छे अदारे के अंदर, वेल एस्टेब्लिश्ड अदारे के अंदर जो है ना उसने टाइम गुजारा हुआ है और उसने बाकायदा साबित किया हुआ है अपने आप को कि मैं वाक़ई नहीं इस काबिल हूँ कि मैं बेहतरीन उस्ताद हूँ। और 2012 से मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया हुआ। आप कभी ऑनर बोर्ड उठाकर देखिएगा बेटे, मुझे याद है कि हमने 2019 18 या 19 तक मैंने यानी मैट्रिक की क्लासेस को पढ़ाया, उसके बाद जस्ट इंटर की क्लासेस को पढ़ाया। 2018 या 19 और उसके बाद भी अगर बात की जाए, देखा जाए, हमारा ये जो ऑनर बोर्ड है उसको उठाकर देखा जाए तो बेटे हमारे मुकाबले में कोई कॉलेज था ही नहीं, कोई अदारा था ही नहीं। इर्द गिर्द हर बंदे को, हर पर्सन के, हर पढ़े लिखे इंसान को पता होता था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही अदारा है जी,
اور وہ ہے ایمان پبلک ہائر سیکنڈری اسکول.